Now, whatever I am going to discuss, you can like follow that strategy to score more, right? So, see, here I am answering your most requested query, that is, what should we target, like how many questions we need to attempt in order to like have a decision that we are qualifying this written examination. Now we have to prepare for the interview, right? So this will be regarding the smart strategy from my side. Okay, smart strategy from my side, that is final of that is हाँ, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे में. So this is final from my side, right? So how many question you need to target? The first question is how many questions you need to attempt. So your aim should be not less than 75 to 80 questions, right? Not less than 75 to 80 questions. And how many questions you are having in your examination? 100 questions, right? Now you will be getting +1 for the correct answer, and you will be like, it will be deducted 0.33 1/3 if you are attempting the question incorrect. Okay, this is the fact. Now you have to aim about 75 to 80 questions, right? You need to solve at least 75 to 80 questions. And if you are having like out of, ऐसा तो होगा नहीं, yeah, whatever you have attempted that all are 100% accurate and correct, no. So if we can consider that the correct number of questions are 65 plus, right? Like out of 75 to 80, 65 questions you are like you have corrected, you have attempted correctly, then your total score will be around, okay, your total score will be around 65 to 75. Okay, 65 to 75 marks you will be having. Understood? So if you are scoring like 65 to 75 marks out of 100, that is 65 to 75% marks, okay, out of 100, if you are in UR category, then you will qualify the written examination for sure, right? You will definitely qualify the written examination. Now, if you are attempting 3 wrong questions, 3 wrong questions attempted, then you will lose around 1 mark. ठीक है? So if I have written here that you have to attempt 75 to 80, and out of those 80, if you got 65 plus correct, then your marks will be like this way, 65 to 75 के रेंज में. एंड 10 मार्क्स अगर आपका नेगेटिव भी होता है, 10 मार्क्स नेगेटिव होने के लिए कितना गलत करना पड़ेगा? 3 रॉन्ग क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है, तो 1 मार्क आपका लगभग लगभग कट जाएगा, 0.33. तो यू कैन थिंक कि आप कितना गलत करेंगे तो आपके कितने मार्क्स जाएंगे. नाउ यहाँ पे 10 नंबर भी जा सकते हैं आपके नेगेटिव में, ठीक है, 3 3 3 3 करके. तो इफ यू आर अ पर्सन हु इज थिंकिंग कि सिर्फ 10 मार्क्स ही तो जा रहे हैं, क्या जाता है, मैं 30 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता हूँ, 40 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर लेता हूँ. सो हियर इज वन, अगर आप ऐसा सोच के नेगेटिव पे नेगेटिव अटेम्प्ट करे जा रहे हो, सो ये सोचो कि आप स्कोर कर रहे थे समवेयर अराउंड 65 टू 75. एंड इफ यू आर थिंकिंग कि मैं और 30 कर लेता हूँ, 10 ही नंबर तो जाएगा, 10 नंबर क्या है, सो इसमें से आप माइनस कर दो, ठीक है, 10 मार्क्स. कहाँ पे पहुंच जाओगे आप? 65 टू 75 के बजाय 55 टू 65 पे पहुंच जाओगे. 55 to 65 will now become 50-50, so like
सिचुएशन 50-50 हो जाएगा फॉर यू आर आई एम टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर कैटेगरी, आई एम टॉकिंग अबाउट द अनरिजर्व्ड। ठीक है, अनरिजर्व्ड के लिए, जनरल के लिए मैं बात कर रही हूँ। So अगर आप somewhere you are lying in between 55 to 65, then the situation will be like 50-50. Now all it depends on the difficulty level of the paper. If the paper is very difficult, then I think cutoff will be like low and you will qualify. ठीक, लेकिन मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ, I am talking in a very broader sense. Like I am not talking about कि पेपर इजी आता है, पेपर डिफिकल्ट आता है, पेपर मॉडरेट आता है। आई एम टॉकिंग इन अ ब्रॉडर सेंस, मीन्स पेपर चाहे जो ना आए, ठीक है, अगर आप टारगेट हाई रखते हो, सो इफ योर पेपर इज डिफिकल्ट, देन कंपैरेटिवली अगर आप 10 नंबर भी उससे कम लाते हो, देन यू गोना क्वालिफाई। ठीक है, अब जो मैंने इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट मुझे जो आपको बताना है, ठीक है, क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट पार्ट आपका? इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, हाउ यू कैन अवॉइड द नेगेटिव मार्किंग, right? How you can avoid the, how you can, please mute your mic, whoever is there, please mute your mic. How you can avoid negative marking. I will take your questions, don't worry. ठीक है, this is one like most important question, not for just this exam but for every examination, that how you can avoid the negative marking. जैसे मैं यहाँ पे बोल रही थी, अगर आप अटेम्प्ट करे जा रहे हो ये सोच के कि 1 नंबर ही जा रहा है, 2 नंबर ही जा रहा है, यू नो दैट CSIR में पॉइंट परसेंटाइल में अगर डिफरेंस होता है पॉइंट्स में भी, सो यू आर लाइक यू आर अनेबल टू क्वालिफाई एंड इट हर्ट्स अ लॉट। एंड CSI तो चलो हर 6 महीने में होता है, बट दिस एग्जामिनेशन विल नॉट कंडक्ट फ्रीक्वेंटली, राइट? सो अगर हमारा एग्जामिनेशन, इफ आवर examination is going to be conducted in 2 shifts, like the first and the second shift, be it a morning one and be it a afternoon session. ठीक है, so if they are going to like normalize the marks, obviously the question paper will be different, so they will do the normalization part. ठीक है, दोनों में ही हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जब भी हम नॉर्मलाइजेशन, कौन से कलर के पेन से मैंने अभी तक नहीं लिखा है, if we are like doing the normalization part, then even if you are like your marks is varying like only with 1 mark in between 2 candidates, the percentile is different, right? The percentile is different, so you need to like think over how many questions you are like attending। ठीक है, तो अब समझ आया, परसेंटाइल में जब मार्क्स होते हैं तो 65 क्या 70 क्या, पूरा ही सिनेरियो बदल जाता है। सो ऑलवेज ये माइंड में लेके जाओ कि इतना अटेम्प्ट करना है। नाउ अगेन सी, अब ऐसा हो जाएगा कि मैम ने तो बोला था 75 मरते जीते हालत में 75-80 करना है तो हम करके आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, आई एम टॉकिंग इन अ ब्रॉडर सेंस, इफ द पेपर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो ये 75 to 80% क्वेश्चंस कवरेज का मतलब है, अगर डिफिकल्ट आ रहा है तो ये उतना तो जा ही नहीं सकता। उस केस में भी आपको क्या ध्यान रखना है, अटेम्प्ट विथ लाइक अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, attempt the questions in which you are more than 80% sure। ठीक है, attempt those question in which you are 80% sure। now on the first go, on the first go में what you have to take care of, you have to attempt those in which you are pretty sure, you are like 200% sure that out of A B C D A is the only answer, A is the correct absolutely correct answer। ठीक है, तो आपको इस तरह से थोड़ा ध्यान देके अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट गो में वो कर लिया, सेकंड गो में जब आप जैसे मान लो आपका फर्स्ट टेक में 60 क्वेश्चंस आपने करेक्टली कर लिया है, ठीक है, 60% क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट कर लिया, 60% या 60 100 ही है, तो 60 क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया है, देन यू आर रिमेनिंग विथ ओनली 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा सोच के विचार करके
10 और क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हो, उसमें से अगर 6-7 भी सही हो जाता है, देन यू आर इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, तो सेकेंड गो में कोशिश वो करनी है जिसमें 80% से ज्यादा श्योर हो, उनको ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। नाउ कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा कि हम 100% श्योर हैं? ये जैसे मैंने बताया, फर्स्ट गो में यू हैव टू अटेम्प्ट दी इजी वन, ठीक है। सेकेंड गो में यू हैव टू अटेम्प्ट दी मॉडरेट वन, और मैं ऐसा बोलूंगी कि जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है उनको तो छोड़ ही दो, ठीक है। when you have to go on that question when your time is allowing you to do so. If you have completed the first go, like the very 100% sure easy questions, then you are going on to the like second moderate round, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, देन जाके डिफिकल्ट वन को ट्राई करो। बट बहुत डिफिकल्ट है तो अपना माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय मॉडरेट और इजी वाले को और सटीक तरीके से देख लो, क्योंकि यू आर हैविंग योर सीबीटी मोड, ठीक है। एक और सीबीटी का मोड का मैं बोल देती हूँ, ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं करते हुए किसी बच्चे को देखना है कि एक क्वेश्चन लगा दिया, जैसे ए बी सी डी है, आपने बी लगा दिया और इसको मार्क पर रिव्यू कर दिया, या अपने रफ नोट में लिख लिया कि मुझे फर्स्ट को फिर से करेक्ट करना है लास्ट में सबमिट करने से पहले। नहीं, जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो उसी टाइम सॉलिड कर दो कि ए बी सी डी में से अगर आंसर बी है तो बी में लगाओ और आगे बढ़ो सेव करके, ठीक है। ये नहीं कि मुझे फिर से रिविजिट करना है उस क्वेश्चन को। यू आर हैविंग ओनली 120 मिनट्स ऑफ टाइम, ठीक है। सिर्फ आपके पास 120 मिनट है, उससे ज्यादा तो आपके पास है ही नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको पता है कि बी सही है तो बी में लगाओ, और बार बार चेंज जब करते हैं तो उसमें ही चांसेस होते हैं हमारे गलत करने का, ठीक। अब हो गया फर्स्ट में सबसे इजी, सेकंड में मॉडरेट, थर्ड में थोड़ा सा रिस्क कंट्रोल, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, फिनिश हो गया है हमारा जगह, ठीक है। जैसे ए बी सी और डी ऑप्शन है, ट्राई दी 50-50 रूल, try the 50-50 rule. It means eliminate those two options in which you are pretty sure that these are not the correct answer of the provided questions. Suppose that you know that कि A तो solid wrong ही है, B तो solid wrong ही है. Now you are having 50% of the remaining option. नाउ इसमें क्या हो, इसमें तब अटेम्प्ट करो, 50% तो आप इजीली किसी में भी एलिमिनेट कर पा रहे होगे, ठीक है। अब अगर दो ऑप्शन बचा है उसमें से ट्राई करो 80%। कौन सा आपको 80% लग रहा है, ठीक है। जैसे मान लो सी लग रहा है, देन ऑल्सो एक रिवर्स स्ट्रेटेजी लगाओ कि डी क्यों नहीं हो सकता आंसर, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि सी ही इसका आंसर हो सकता है। जो 80% आप जो ये दे रहे हो, नंबर दे रहे हो, तो क्या इसकी रीजन है वो स्टेट करो, ठीक है। ये मैं उन क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ जो डिफिकल्ट वन है, जिसमें आप रिस्क लेने जा रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगी कि आपको रिस्क भी लेना है, ऐसा नहीं कि एकदम डिट्टो जो सही है वो करके आना है। थोड़े बहुत में रिस्क लोगे तो चार में से एक तो आपका सही होगा ही होगा, प्रोबेबिलिटी भी यही कहता है, ठीक। तो अब जैसे यहाँ पे आपने पॉइंट्स लिख दिए कि सी इसलिए सही है, तो और थोड़ा सोचो कि डी के बारे में भी थोड़ा और अपने दिमाग को घुमाओ कि क्या मैंने कभी सुना है, क्या मैंने कभी पढ़ा है, मुझे सी ही क्यों लग रहा है। अगर आपको सेटिस्फाइंग कुछ रिस्पॉन्सेज मिल जाए सी के लिए तो सी लगा के आ जाओ। अगर नहीं मिल रहे हैं, अगर लग रहा है कि फिर से इन दोनों में भी 50-50 हो, सी भी नहीं लग रहा है डी भी नहीं लग रहा है, वैसे क्वेश्चंस को हमें इग्नोर करना होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे क्वेश्चंस को इग्नोर करना होता है, यही चीज एग्जामिनेशन में बच्चे मिस कर देते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ ये वाली चीज कि 80% जिसमें हमें कंफर्मेशन होता है वो क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। जो अगर लग रहा है कि ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, सी डी में से आपको ऐसा लगता है नहीं ये भी हो सकता है, नहीं ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब यू आर 50-50, 50-50 वाला ऑप्शन है आपके पास। तो उस क्वेश्चन को आपको डिच करना है, नहीं अटेम्प्ट करना है। अब नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं यार मुझे तो स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है कि सी ही सही है, तो उसके कुछ रीजंस लिखो क्यों सी लग रहा है, क्यों, व्हाई नॉट डी, डी ने क्या बिगाड़ा है कि ये नहीं लग रहा है। तो अगर सी के फेवर में कुछ पॉइंट्स याद आ जा रहे हैं तब जाके अटेम्प्ट करो, नहीं तो आपको उस क्वेश्चन में आप फिर से 50-50 हो। 50-50 वाले क्वेश्चंस गलत होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम गलत होते हैं, तो उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक।
अब रिस्की को मैं बता रही हूँ सिर्फ 5 से 10 में रिस्क लेना। यहाँ पे चलो मैं ये भी बता दे रही हूँ, हालांकि ये डिपेंड्स ऑन योर कि कितना आप क्या प्लान बना रहे हो। 5 से 10, 5 या 10 जो मैंने डिफिकल्ट बताया ना, फर्स्ट गो में कितना बताया मैंने, पूरा करना है फर्स्ट गो में, तो सेकेंड गो में आपको सिलेक्टिव करना है, ठीक है, जो मॉडरेट लेवल का है। ठीक, थर्ड जो मैंने बताया जो डिफिकल्ट वाले के लिए आप तीसरी बार राउंड लगा रहे हो, एक से क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100, उसमें ट्राई टू अटेम्प्ट ओनली 5 to 10। इससे ज्यादा अटेम्प्ट करोगे रिस्की और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन तो सबके सब गलत हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि आप मॉडरेट में भी तो थोड़ा बहुत रिस्क ही ले रहे हो। सी, आपका श्योर शॉट यही है, यही वाला श्योर शॉट है, ये तो थोड़ा सा ऐसा वाला है, और ये वाला तो बहुत ही ऐसा वाला है। ऐसे ऐसे कंडीशन में आप आंसर कर रहे हो। सो ऑलवेज रिमेम्बर, यहाँ भी रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, तो अगर यहाँ 5 से 10 से ज्यादा एक्सीड करोगे और यहाँ पे भी आपने बहुत सारा अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए जितना रिवीजन कर सकते हो रिवीजन करो। श्योर शॉट फर्स्ट राउंड में सिर्फ मैं बता रही हूँ वैसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो कि जो बन जा रहे हैं। क्या करते हैं लोग, देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, वो नहीं बना छोड़ दिया, सेकंड बना उसको लगा दिया, थर्ड बना उसको लगा दिया, फोर्थ नहीं बन रहा था उसको भी लगा दिया। तो जब आप पूरे 100 तक पहुंच जाओगे ऐसे करते करते, सो यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि भाई मैंने 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए हैं बट मेरे 50 के 50 तो 100% सही है। ये कब होगा, जब आप ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हो, फर्स्ट गो वाला। फर्स्ट गो में ऑलवेज अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन इन विच यू आर 200% श्योर। हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको वो क्वेश्चन हार्ड लग रहा हो, सेकेंड आप रिविजिट करें तो आपको सही आंसर याद आ जाए। ठीक, तो हमेशा ये कोशिश करना बच्चों कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड में ट्राई टू बी श्योर, आपके माइंड को वो फीड करना कि हाँ मैंने 50 क्वेश्चन सही सटीक लगा दिए हैं। तो आपका ब्रेन क्या कोशिश करेगा, आपका ब्रेन ये कोशिश करेगा कि हाँ मैंने ऑलरेडी 50 लगा दिया है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके माइंड को ये फीड करना इसलिए जरूरी है ये इन्फॉर्मेशन कि भाई तूने 50 लगा दिया है, अब और ज्यादा रिस्क कैसे लेना है, कैलकुलेटिव होके चलना है। ठीक है, कि जो 50 नंबर आ रहे थे उसको भी मत खो दे। तो आपके माइंड को ये रहेगा कि यार मैंने जो 50 अच्छे से बनाए हैं, मेरे को अब ज्यादा रिस्क लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, आई विल से कि आपके जो, हाँ ये वाला फर्स्ट गो में आपके कम से कम 60 सही होने चाहिए। ठीक है, समवेयर अराउंड 55 to 60। 60 से ऊपर होते तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको रिस्क कम लेना पड़ेगा। ठीक, तो आई होप कि जितना मैं समझाना चाह रही हूँ आपके दिमाग तक ये चीजें जा रही हैं। ठीक है, कैसे करना है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ करेक्ट वाले करो, सेकंड में मॉडरेट वाले देखो, जो फर्स्ट राउंड क्वेश्चन सब पढ़ते जाओ ताकि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में है। फिर आपके माइंड में भी रहेगा ना कि मैंने ये बायोएथिक्स पढ़ा है तो मुझे इसके क्वेश्चन को डील ही करना है। अगर आपको पता है कि आपका बायोस्टैट्स अच्छा नहीं है, आप वीक हो, तो उस क्वेश्चन को टच ही मत करो। तो इसलिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। जो डिफिकल्ट लग रहा है, यू आर हैविंग अ रफ शीट, उसमें लिख दो, डी करके क्वेश्चन नंबर का नाम दे दो, ताकि डायरेक्टली आप उस क्वेश्चन पे जंप कर सको अपने क्वेश्चन पैलेट से। यू आर हैविंग अ क्वेश्चन पैलेट एज इट इज अ सीबीटी मोड, पढ़ना नहीं पलटना है, डायरेक्ट क्लिक करो, तो ऐसे लिख लो। ठीक, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुझे जो बोलना था, हाँ जैसे कि जब हम रिवीजन करके जाते, जैसे मैं अपना बता रही हूँ, इट माइट बी लाइक विथ यू टू एज वेल। जैसे अगर मैं कुछ रिवीजन करके गई हूँ, ठीक है, आई यूज टू ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द डे ऑफ माई एग्जाम। ठीक है, तो मुझे जो भी मैं पढ़ के जाती हूँ, मुझे वो मेरे माइंड में चीजें सामने होती हैं कि मैंने अपने नोट्स ऐसे बनाए थे, इस कलर से बनाए थे, फ्लो चार्ट बनाया था, डायग्राम बनाया था, वॉट एवर। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो एंड लकीली आपको वैसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, सो आपका ब्रेन क्या होगा, ओवर एक्साइटेड हो जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने आज ही पढ़ा है, मुझे तो ये आएगा ही आएगा। तुरंत क्या करो, अपने रफ नोट में जो भी इंफॉर्मेशन आपके इमेज जो बनी हुई है ब्लर सी, उसको तुरंत अपने रफ शीट में लिख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, ओवर एक्साइटमेंट इसको गलत नहीं करोगे, जो भी आपके माइंड में है फटाक से बना लो एंड देन उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो 100% श्योरली आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मैं एग्जामिनेशन का स्ट्रेटेजी बता ही रही हूँ तो आपको बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी एक बात याद रख लो, दिस इज नॉट द लास्ट चांस। अगर अच्छा पेपर नहीं भी जा रहे तो अपने आप को यू नीड टू लाइक थिंक लाइक दिस कि ये लास्ट चांस नहीं है। अगर आप यहाँ डर गए, अगर आप यहाँ पे डिमोटिवेट हो गए, तो आप आगे की अपॉर्चुनिटीज कैसे फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है, हाँ हम ऐसा बोल जरूर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यू ऑलवेज थिंक लाइक दैट कि डू और डाई सिचुएशन है, बट दिस इज नॉट लाइक दिस वे कि आप
आपको इसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। और एक और चीज, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, सेकंड क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे करते करते 10 में से कुछ ही आपको नहीं बना, तो ऑटोमेटिकली आप एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में हो, यू विल गेट सो स्ट्रेस्ड आउट। तो उस केस में भी स्माइल, ठीक है, याद रखना मेरी बात, मैम ने क्या बोला है, हंसते जाओ। 11वां क्वेश्चन को बहुत खुशी से अटेम्प्ट करो, 11वां बनेगा, 12वां बनेगा, कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करो, ठीक है। 100 क्वेश्चन है पेपर में, 100, 10 नहीं है कि 10 नहीं बने तो हो गया आपका डाटा बाय बाय। तो इस तरह से उस 2 घंटे में अपना इतना बेस्ट दो कि एग्जामिनेशन निकले ना निकले, आप अपने आप पे प्राउड फील कर सको, सेटिस्फाइड हो कि मैंने पूरा जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद मैंने गिव अप नहीं किया, ठीक है, गिव अप करना लूजर्स का निशानी होता है। तो इस तरह से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है, डू राइट इट डाउन, आई विल लेट यू नो कि क्या आपका डाउट है, इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ पॉइंट रह गया है तो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चाहिए होगा, सो आई विल कीप इट।